Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the 10th class on that side. I've been again welcome on the same platform of the Life Physics. So we are again gathered to continue the topic of the magnetic effect जो हम लोगों ने last time apart from the NCERT discuss किया था. I hope you all have learned all these formulas because this time is to do the numericals related to that. So this video will only include the numericals. ये केवल न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करेगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इट वुड नॉट बी दैट मच लेंथियर वन, ज्यादा लेंथी नहीं होने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम ऑफ द बेसिक न्यूमेरिकल दैट वी कैन हैव. बट बिफोर दैट यू शुड नो और यू शुड प्लीज कीप योर न्यूमेरिकल और योर फॉर्मूला लिस्ट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम यूज किया था फॉर डिफरेंट शेप लाइक फाइनाइट स्ट्रेट वायर. वी टॉक अबाउट द इनफाइनाइट wire, we talk about the half infinite, then we talk about the axis of the circular loop, surface near about उसके surface जितना distance हो, at the end we discuss about at the center जो सबसे important है, and the end the seventh case that the magnetic field on the wire, the current carrying wire के ऊपर या फिर on the axis of the wire के ऊपर या wire के सामने अगर point है, then the magnetic field would be zero. So with all these 7 points, let's start the sum numerical जो अब हमारे सामने आने वाले हैं. So the first numerical that I am asking you, find the net magnetic field. What? Find the net magnetic field at O. Let's suppose there is some point and the shape of wire is like that. Okay, this is the O point. And this wire is infinite and infinite here carries the current I, and the radius of this circular wire is capital R. Now the teacher is asking calculate the net magnetic field at O point. तो अब सीधी सी बात है how to solve this type of numerical. Check this out. तो चलिए when we are going to solve the numerical, तो अब हम इन numericals को various sections में divide करेंगे. So we will divide in the various sections. तो section number 1, पहला वायर कैसा है? So we will divide. This is your wire number first. This circular इसे हम लोग wire number 2 लेंगे और जो last straight wire है इसे wire number 3. तो तीनों wire पे बात करते हैं. So one by one. This first wire, how it is looking like to you? ये आपको कैसा दिख रहा है first wire? The first wire looks as a straight. But how straight? कैसा straight? Finite और infinite? कैसा है? Infinite है. But ये वाला end यहाँ तक देखना first wire को. फिर सर्कुलर शुरू हो जाता है, फिर नेक्स्ट वायर शुरू होता है. तो यहां तक आपका वायर कैसा है? स्ट्रेट है बट हाफ इनफाइनाइट है. सो फॉर फर्स्ट वायर जो कि कैसा है? हाफ इनफाइनाइट. हाफ इनफाइनाइट. द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू फर्स्ट वायर, लेट्स सपोज इट इज B1. कैसा है? हाफ इनफाइनाइट है. बट चेक दिस आउट. With respect to first wire के रिस्पेक्ट में आपका O point कहां पे है? So O point is on the axis of the first wire. वैसे तो first wire half infinite है, but O point आपके first wire की axis के ऊपर है. And according to the 7th case of the previous lecture, if the point is on the axis of the wire, the magnetic field is 0. So the magnetic field due to first wire 0 क्योंकि axis पे है. So you can write there because on the axis of wire. Am I clear with that? Yes. Now for second wire, बताइए second wire कैसा है? Circular. और सर्कल के सेंटर पे जा रहा है. एक्सिस वगैरह का कुछ नहीं है कि सर्कल अलग है और पॉइंट कहीं और है. तो सर्कुलर है एंड सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और सर्कल के तो एक्सिस पे है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर थीटा बाय 360 म्यू नॉट I by 2r. सो हाउ मच एंगल दैट योर सर्कुलर वायर इज कवरिंग एट द सेंटर? कितना एंगल कवर कर रहा है? 180. सो द B2 would be 180 by 360 म्यू नॉट. करंट इज I divided by radius is r. 180 by 362. So what is the magnetic field? Mu naught I divided by 4r. First of all, we will not write the value of mu naught here. You all know what is the value of mu naught. Please I am writing permeability. क्या value होता है? 4 pi into 10 power
-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी, बट वी विल नॉट राइट, हम लोग ये वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे बिकॉज यहाँ पे I की वैल्यू भी अननोन है और R की वैल्यू भी अननोन है, तो ये वाली वैल्यू रख के कुछ सॉल्यूशन तो होने वाला नहीं है। सो वी विल लेट इट बी लाइक दैट। बट सिंस फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड 0 था क्योंकि ऑन द एक्सिस था, बट सेकंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो होती है लेफ्ट राइट इनवर्ड आउटवर्ड। तो चलिए पता लगाते हैं। तो बताइए सर्कुलर वायर O पॉइंट के लिए कौन सी डायरेक्शन में करंट दे रहा है? केवल सर्कुलर को देखो। व्हेन यू आर स्टडीइंग सेकंड वायर देन ओनली टॉक अबाउट द सेकंड वायर। तो सेकंड वायर आपके सेंटर पे कि एंगल तो 180 बना रहा है, बट कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो इट इज मेकिंग क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज मींस मैग्नेटिक साउथ एंड साउथ मींस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। And for inward, what is the symbol? Cross. Done it? Now for the third wire वो भी half infinite है, but for the third wire O point is again on the axis. Okay, current उधर जा रहा है but है तो उसी की लाइन में ना। And for the third wire, if the current is again, sorry, the point is again on the axis. So according to the seventh case, if the point that at which we have to find out the magnetic field, if the point is on the axis itself, the magnetic field would be 0, and if the magnetic field 0, so what is the net magnetic field at A? It would be B1 plus B2 plus B3. I know B1 is 0 and B3 is 0, but एक बार तो सबको लिख के दिखाना है। B2 is mu naught I by 4R plus 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I by 4R, और वो भी कैसा? इनवर्ट, क्योंकि दिस वाज 0, केवल 2 की वजह से लग रहा है वो भी इनवर्ट, तो नेट भी इनवर्ट ही होगी। गॉट इट? दिस इज द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके कोई भी केसेस यूज हो सकते हैं भाई, स्ट्रेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी, हाफ भी, सर्कुलर भी, एक्सिस पे भी, any of the case can be utilized here. So for that you have to be pretty sure. So first of all, please note it down. Done? Okay. So please note it down this numerical. We will practice 2-3 numericals more and you will get the assignment for that. So now after this, चलिए और practice करते हैं, कुछ और numericals को देखते हैं. Let's have one more practicing for here. We have this. We have this type of structure. We have I is the amount of current and I is the amount of current which is being shown here. So this is the structure and this is the O point. Now the question remains the same. Find the net magnetic field at the point O. तो चलिए फिर से काम करते हैं। तो फिर से डिवाइड करें, स्ट्रेट, सर्कुलर, स्ट्रेट। तो नंबर 1 वायर, नंबर 2 वायर एंड नंबर 3 wires. Wire 1, wire 2 and wire 3. So for wire 1, for first wire, कैसा है first wire? Half infinite. How the first wire look like? Half infinite. तो half infinite, but इस बार do the O point is on the axis of first wire? क्या O point first wire की लाइन में है, first wire की एक्सिस पे है? मीन्स उसी के सामने नहीं। इस बार O पॉइंट वायर के सामने नहीं है, ये होगी वायर की एक्सिस, उसके ऊपर नहीं है। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? इट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, सो यू नो दैट फॉर द थर्ड केस, हाफ इनफाइनाइट हमारा तीसरा केस था, यू कैन चेक आउट द फॉर्मूला फॉर द इनफाइनाइट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला वाज म्यू नॉट I by what? 2 pi A. Remember? So for the infinite wire हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट I by 2 pi A. बट हाफ इनफाइनाइट में उसका हाफ हो जाएगा, so it would become म्यू नॉट I by 4 pi A, where I stands for the current. But what is the meaning of A? A क्या मीनिंग होता था इनफाइनाइट वायर में? अगर आप लोग डायग्राम को फिर से देखें, A stands for the perpendicular distance of the point जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है and the wire. तो हमें कहां पे डिस्टेंस निकालना है? O.
ओ और इस वायर के बीच का कोई डिस्टेंस बता सकता है? व्हाट वुड बी द डिस्टेंस? द डिस्टेंस वुड बी द आर। क्यों? क्योंकि यही तो इसकी रेडियस है और यही रेडियस यहाँ पे वो डिस्टेंस बन जाएगा। सो दैट डिस्टेंस वुड बी आर। सो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ओके, फॉर्मूला इनफाइनाइट का लगाया, बट ये अलग बात है, यहाँ पे ए आर के इक्वल आ गया, जितना रेडियस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। ओके, गॉट इट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन, तो चलिए डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। बट द डायरेक्शन ऑफ हुज मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है? फर्स्ट वायर। केवल आप फर्स्ट वायर को देखो तो चेक दिस आउट। फर्स्ट वायर इधर जा रहा है, ओ पॉइंट यहाँ है, तो एक बार रफ में ड्रॉ करके देख लीजिए। दिस इज योर फर्स्ट वायर एंड दिस इज द ओ पॉइंट। बस सेकंड और थर्ड को भी के लिए भूल जाइए। सो फर्स्ट वायर को अगर इसके चारों तरफ रिवॉल्व करें, क्योंकि स्ट्रेट है तो रिवॉल्व करना पड़ेगा, अगर सर्कुलर होता तो अपने आप ही पहले ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए इसके चारों तरफ रिवॉल्व करके देखो। ओके, वेदर यू कैन अप्लाई योर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, बट अब शॉर्टकट आता है ना तो थोड़ा टाइम जल्दी करेंगे। सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो इट वुड बी क्लॉकवाइज, एंड इफ इट इज क्लॉकवाइज सो इट वुड बी अ साउथ पोल एंड इट वुड बी इनवर्ड, एंड फॉर द इनवर्ड द सिंबल इज क्रॉस। गॉट इट? नाउ फॉर सेकंड वायर, सो सेकंड वायर क्या है? सर्कुलर फॉर्म। तो सर्कुलर B2 is theta by 360 mu naught I by 2r. Okay, remember finite और infinite या कोई भी हो वहां पे नीचे पाई आता है, but in the circular there is no pi. तो ये बात थोड़ी सी संभल के करेंगे, यहाँ पे कोई पाई मत लिख देना गलती से भी। Okay, okay, what is the theta covered by the circular wire? कितना कवर कर रहा है? 180. So 180 by 360 mu naught I by 2r. It would be 2. So what is the B2? Mu naught I by 4r. Inward और outward? ये तो पहले से ही दिख रहा है, सर्कुलर है, so it is clockwise around it, so it would be inward. So हमें B1 मिल गया, B2 मिल गया. Let's talk about for which wire? For थर्ड वायर पे बात करते हैं, चलिए। So let's talk on B3. So B3 क्या है? थर्ड वायर क्या हमारा? फिर से हाफ इनफाइनाइट। अब सिंस वो हाफ इनफाइनाइट है या फाइन इनफाइनाइट है, जैसा भी है, पर एक बार चेक करते हैं क्या वो एक्सिस पे है? नो, दिस टाइम O पॉइंट इज नॉट ऑन द एक्सिस, ऊपर है थोड़ा सा। और कितना ऊपर है ये डिस्टेंस को बता सकता है? इट वुड बी अगेन विद द रेडियस। सो व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द हाफ इनफाइनाइट? म्यू नॉट I by 4 pi a। और इस बार आपका A फिर से किसके इक्वल है? R के इक्वल। सो B3 भी कितना आया? म्यू नॉट I by 4 pi r। बट ये अलग था, ये अलग था। अब चलिए इसको देखते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये चेक करते हैं। तो O पॉइंट यहाँ है और ये आपका हाफ इनफाइनाइट है। तो देखिए ऑल दी वायर शुड बी स्टडीड सेपरेटली। हर वायर को अलग अलग पढ़ना है और अलग अलग डायरेक्शन निकाल के देखनी। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप रफ में जाके केवल उस पर्टिकुलर वायर का डायग्राम बना लो। जैसे फर्स्ट के लिए वायर और ये रहा O पॉइंट, चलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। थर्ड के लिए ये रहा। ओके, सेकंड के लिए कोई इश्यू नहीं था बिकॉज वो ऑलरेडी पहले से ही सर्कुलर था, तो चलो इसमें हेल्प करो भाई। हाफ इनफाइनाइट है तो फॉर्मूला लग गया। अब डायरेक्शन की बात करो। O पॉइंट यहाँ पे है और वायर का करंट इधर जा रहा है, बताइए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज उसके चारों तरफ घूमने के लिए? टू रिवॉल्व अराउंड दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू गो, वी हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब आउटवर्ड। ओके, सो हियर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड? इट इज B1 plus B2 plus B3। तो अब देखिए, तो नेट तो तीनों का ऐड ही आएगा, बट अब एक समझने वाला बात है। फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लग रहा है अंदर, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड B अंदर लग रहा है, बट जो थर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर लग रहा है। तो इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ थर्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड, और ये आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। एंड दैट स्टैंडर्ड इज कि लेट अस टेक इनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं मैग्नीट्यूडली और आउटवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। यू ऑल नो दैट इन फिजिक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन। ये आप हमेशा से जानते आए और हमने पढ़ा है 9th में भी और 10th में भी।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताते हैं? डायरेक्शन। तो हमने एक सेट बना लिया यहाँ पे, जैसे रिमेंबर इन द स्कूल वी स्टडीड द साइन कन्वेंशन इन द मिरर कि भाई लेफ्ट के लिए साइन नेगेटिव ले लो, राइट के लिए पॉजिटिव। बट लेफ्ट के लिए नेगेटिव है इसका मतलब ये थोड़ी डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, बट नेगेटिव दिखाता है कि इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड पॉजिटिव शो ऑन द राइट हैंड साइड। तो ऐसे ही एक साइन कन्वेंशन रख लेते हैं भाई, इनवर्ड पॉजिटिव, आउटवर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्ड कौन कौन है? b1 नेगेटिव इनवर्ड है, तो उसके लिए पॉजिटिव से साइन रखेंगे प्लस म्यू नॉट I by 4 pi r। b2 इट इज आल्सो इनवर्ड, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। इट इज आल्सो इनवर्ड, सो इट वुड बी पॉजिटिव म्यू नॉट I by 4r। बट b3 इज आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए कैसा साइन ले लें? नेगेटिव म्यू नॉट I by 4 pi। ओके, ये साइन कन्वेंशन मैंने लिया है। आई सजेस्ट कि आप लोग भी एक स्टैंडर्ड बना लो। बट अगर आप में से कोई कहते हैं नो सर आई वांट टू टेक आउटवर्ड एज अ पॉजिटिव और इनवर्ड एज अ नेगेटिव, आपकी चॉइस है। बट ऐसे में फिर एक दूसरे के आंसर कंपेयर मत करना हो कि तेरा तो नेगेटिव आ रहा है, मेरा पॉजिटिव आ रहा है, अरे गलत हो रहा है। व्हाई? बिकॉज आपके क्या पता साइन कन्वेंशन अलग हो, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं, इनवर्ड को पॉजिटिव और आउटवर्ड को नेगेटिव। तो चलिए सॉल्व करें। सो दिस विल कैंसिल विद दिस, सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? प्लस म्यू नॉट I by 4r। सो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट I by 4r। पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा आया नेट मैग्नेटिक फील्ड? पॉजिटिव। और हमने पॉजिटिव किसे माना था? इनवर्ड को, तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। अगर आपका आंसर, इफ योर फाइनल आंसर आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस बिकम्स नेगेटिव, अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आता तो नेगेटिव साइन जो लिया है आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां हो जाती है, सिंपल। एंड दिस इज द टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल जो हम हमें करने हैं फॉर द NTSC पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज फ्रॉम द लास्ट एंड दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग टोटली NTSC। हम केवल पूरा NTSC को फोकस कर रहे हैं। अभी ये NCERT से थोड़ा ऊपर जा चुका है। So that's why for the NTSC point of view this is being your very much important section जो आपको सीखना है। I hope you are getting it. Okay, so we will practice for one more. हम लोग एक दो का प्रैक्टिस और करते हैं और फिर उसके बाद आगे आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए एक और ऐसे देखते हैं न्यूमेरिकल, चलो उसमें देखते हैं क्या मिलता है हमें। So we have one more numerical here and that numerical is something like that. Check this out. This numerical is like that. Okay, so current is coming, here it is going, here it is going. Okay, and this angle is 60 degree. Okay, this is the type of the question. This is the radius r for the circular loop. This is the point O, and he is asking calculate the net magnetic field atom. Again, now I will do little bit quickly. अब मैं जल्दी जल्दी काम करूंगा। दिस इज आवर फर्स्ट वायर, दिस इज आवर सेकंड वायर एंड दिस इज आवर थर्ड वायर। ओके, फर्स्ट वायर कैसा है? स्ट्रेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बट ये वाला एंड फिक्स है भाई, इसके बाद यहां जा रहा है, ये इसकी एक्सिस को दिखा रहा है। बट ओ पॉइंट फर्स्ट वायर के रिस्पेक्ट में कहां है? वेयर इज द ओ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वायर? इट इज एट ऑन द एक्सिस। ओके, फाइनाइट और इनफाइनाइट वायर और गिवन पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को आप a देते हो, बट आई एम अगेन सेइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a? a means the perpendicular distance of the point from the wire, उस वायर से उस पॉइंट का perpendicular distance, बट यहाँ पे perpendicular distance नहीं है, on the axis है। तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई विल डू क्विकली, अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे। ओके, सेकंड सर्कुलर, बट व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द वायर अराउंड द पॉइंट? कितना? 60 डिग्री। तो शुड आई गो 360 by 360 म्यू नॉट I by 2r 60। व्हाट इज द थीटा मीनिंग? मैं आपको क्या सिखाया था? थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल कवर्ड बाय द वायर अराउंड द पॉइंट। तो वायर ने पॉइंट के चारों तरफ कितना किया? 360 डिग्री पे कोई थोड़ी वायर है, वायर तो यहां से शुरू हो रहा है और वायर यहां तक जा रहा है सर, तो कितना डिग्री एंगल हुआ? ये 60 है, पूरा एंगल कितना होता है? 360, so this should be 300। Got it? कितना एंगल कवर किया? 300। आपने उस पॉइंट के चारों तरफ, आपने मतलब वायर कितना एंगल कवर कर रहा है आपको वो पता लगाना है। ओके,
सो 300 बाय 360 सॉल्व हो सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कर लेंगे खुद। थर्ड वायर कहां पे है? ऑन दी एक्सिस, सेम एक्सिस पे, तो थर्ड की भी मैग्नेटिक फील्ड 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व कर। Got it? So similarly, on the basis of or on the concept of such type, you will get the numericals. कुछ numericals आपको मिलेंगे 6, 7, 8 numericals. I hope, and you will do all the numericals. Please have the solution. हर numerical का अपना solution रखिए, उसे complete कीजिए, अपनी assignment अपनी फेयर नोटबुक में ही continue रखिए। प्लीज हम लोग जितना भी कंटेंट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बहुत अलग है, एनसीईआरटी से बियॉन्ड जा चुके हैं हम लोग, बट द पॉइंट नोटबुक में हम लोग अपने फेयर में रखेंगे। सो नोबडी थिंक दैट कि हम लोग इसे रफ या असाइनमेंट में कर लेते हैं। सो वहीं पे वर्क कीजिए और इनके सॉल्यूशन भी अपने फेयर में ही करने। गॉट इट? सो 10th क्लास, दिस इज ओनली फ्रॉम दिस लेक्चर। इस लेक्चर से आज केवल इतना ही, बिकॉज हमारा फोकस केवल न्यूमेरिकल पे था, तो लेक्चर थोड़ा सा एज कंपैरिजन टू प्रीवियस थोड़ा शॉर्ट रहा है, बट प्लीज हेल्पफुल है। न्यूमेरिकल जो हमने 2-3 यहाँ पे किए उन तीनों को प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और solve the numerical जो आपको असाइनमेंट में अवेलेबल मिलने वाला। ओके, थैंक यू वेरी मच।